Greetings. Wanted to share a few words with you on behalf of CBMC Asia Pacific. CBMC Asia Pacific is an association of the different CBMC ministries in the region, and it spans from India in the west right up to New Zealand in the far east. CBMC Asia Pacific also works to encourage and help to grow the CBMC ministry across this region and in different countries. Recently, under the leadership of Wei Wang, the chairperson, and Chung Sung Kim, president, and Ben Nam, who has recently joined, there has been a renewed focus to look at how CBMC Asia Pacific can come alongside and actually practically work with different CBMC groups in each country. We have identified 3 or 4 different parameters: mature countries like India and Korea, growing countries, some like Thailand, Singapore and Malaysia, and emerging countries like Bangladesh, Sri Lanka, and so on. And the idea is that those countries that have been there for a while and have been developed would come alongside and help the countries that are emerging grow the ministry in their respective countries. For India, our responsibility is to work with the neighboring countries, namely Nepal, Bangladesh and Sri Lanka. We would continue to value your prayer as we do that. Pray also that India, with its experience and with the years behind it, will continue to grow, that there would be the reach out to the diaspora across would also be something that we would be able to do much more effectively, as Korean CBMC has done. And so on behalf of CBMC APAC, greetings for the convention in India, and the prayers of the entire APAC are with India at this time, and we continue to covet your prayers for us. CBMC has taught me that business is not only about profit, but about Christian values. CBMC taught me that Christian ministry is not only about preaching, but about impacting the marketplace. CBMC has given me an opportunity to serve in the CBMC International Board. CBMC is present in about 95 countries and in all the inhabited continents of the world. India is part of the Asia Pacific region. The CBMC USA and CBMC South Korea are perhaps the most active CBMC countries. I had the opportunity to attend the CBMC convention of South Korea. You could feel the Christian fervor and the vibrancy of the movement. It was also like a huge political rally with drum beating, waving of flags, and thousands in attendance. The Latin America Convention was held virtually on September 17th and 18th. A total of 1,050 people from 8 countries participated. The Middle East is beginning to open for CBMC ministry, with the first group becoming active in Dubai. Operation Timothy, the very successful Christian mentoring tool used by CBMC, is being translated into French, Swahili, Portuguese, Arabic, and Afrikaans. The digital platform that is being set up to make Operation Timothy available in all languages of the world is being put into action. We could probably see Tamil, Malayalam, and Hindi versions of Operation Timothy available to us. Finally, CBMC International, with the chairman Paul Jennings of South Africa and President Jim Fernstall, are working on a 10x strategy to make CBMC tenfold by 2030. I pray that India would be the first to reach that goal. Amen. Thank you.
मेरा नाम अमित रंजन है और मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सूरत स्थान पर कार्यरत हूँ। बैंकिंग में कार्य करते हुए मेरे ये 10 वर्ष पूरे हुए, लेकिन मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं CBMC के साथ जुड़ा था। और यह श्रेय किसी और को नहीं, हमारे सीनियर सुनील मीन सर को जाता है। यह मेरे लिए पहली नौकरी थी और मैं बैंकिंग में नया था। बैंकिंग में मेरा जो अनुभव था और जो मेरे समझ थी वो यह थी कि यहाँ पैसे का लेन देन होता है और पैसे में बहुत ज़्यादा एक मुझे अनुभव होता था कि ये पाप का स्थान है जहाँ पर गलतियाँ और गंदगी होती है। लेकिन CBMC का जुड़ाव होने के बाद जब सर ने यह इंट्रोडक्शन करवाया मुझे, हम लोगों ने ये जब कोर्स किया तो मैं बहुत उत्साहित था कि CBMC में मुझे नई नई बातें सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था। सर ने बताया और हम लोग वीकली क्लास करते थे। मुझे याद है बल्लारी में हम लोग 4-5 लोग का ग्रुप था और उसमें सर हमारे मेंटर हुआ करते थे और वहाँ पे उन्होंने हमें इसके बारे में बहुत अच्छा से समझाया। और अलग अलग कोर्सेस करते हुए हमें यह समझ में आया कि हाँ, पैसा उतना ही बुरा चीज़ नहीं है। ये नहीं होता है कि अगर कोई जिम्मेदारी है किस चीज़ की तो उसे हमें कार्यवाही अच्छे से करना है। CBMC के द्वारा जो फाइनेंशियल जो इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, उसके बारे में मुझे समझ में आया। और बैंक में कार्य करते हुए उसका जो हमें समझ है वो हमें हर दिन दैनिक कार्यवाही में मदद करता है। मैं हमेशा सुनील सर को याद करता हूँ क्योंकि वो ऐसा मेंटर है और विशेष रूप से उन्होंने यह मौका दिया मुझे CBMC से जुड़ने का और उससे जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, जो हमें समझ मिली पैसे के बारे में, फाइनेंशियल जो समझ होती है वो हमें इस प्रोग्राम के द्वारा पता चला। एक डिसाइपल के रूप में हम ऐसा विश्वासी हमेशा हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन हम हमेशा हर सोच में ये रहते हैं कि नहीं, अगर हम विश्वासी हैं तो हमें पैसे से दूर रहना है। पैसे को हम उतना महत्व नहीं देते, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पैसे को इस्तेमाल। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सैमुअल मैसी, मैं पंजाब से हूँ और मैं बहुत आनंदित हूँ इस विषय के बारे में बात करने के लिए, क्रिश्चियन बिजनेस मेंटर काउंसिल के विषय में। और जब से मैं इस CBMC के साथ जुड़ा हूँ 2015 के में से, और बहुत से मेरे जीवन में अद्भुत कार्य हुए हैं और मुझे देश विदेशों में घूमने का मौका मिला, अपने नॉर्थ से साउथ घूमने का मौका मिला और बहुत सी जो स्टडी इनके जो सेमिनार्स अटेंड किए हैं उसने मेरे जीवन में मेरे बिज़नेस को बढ़ोतरी करने के लिए बहुत काम किया। और मुझे चांस मिला, मैं इंग्लैंड गया और आयरलैंड बेलफास्ट में एक मीटिंग सेमिनार अटेंड किया। उसने मुझे बहुत आनंदित किया। बहुत ही मेरे लिए वो एक जिसे कहते हैं कि आप दिमाग खोलने वाले विषय, जिनके विषय से जो मैंने अपने बिज़नेस में, अपने कार्य में उन चीज़ों को मैंने अडॉप्ट किया और प्रभु की दया से मेरे को बिज़नेस में भी बढ़ोतरी मिली। और जो हमारे ब्रदर हैं, जो एसोसिएट्स हैं CBMC के, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। उनके साथ हर चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं, अपने काम को लेके, अपनी फैमिली को लेके, क्योंकि बहुत से लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। प्रभु हम उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर ने बहुत काम किए हैं मेरे जीवन में। बताना चाहूँगा कि जैसे 2014 में मैंने इस 15 में CBMC के साथ जुड़ा और उसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। फिर मेरे पास 2 बैंक्वेट आए, जिन बैंक्वेटों को मैं लीज़ के ऊपर रन कर रहा था, लीज़ लेके। और एक समय वो था कि मैं अपने लिए एक साइकिल तक लेने में मुझे दिक्कत आती थी, क्योंकि मैं पहले उस समय एक आम क्रिश्चियन ना हो करके सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर वाला क्रिश्चियन था,
क्योंकि मैं उन्हीं दिनों चर्च जाया करता था। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने रेगुलर चर्च जाना शुरू किया और प्रभु ने बातचीत की और प्रभु ने बिल्कुल मेरे को बहुत आयत से बढ़ाया, बिजनेस को बढ़ाया, नाम को बढ़ाया। उसमें CBMC के द्वारा जो मेरा क्रिश्चियंस नेटवर्क बना और जो तरह तरह के प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और एक्सपर्ट लोग जो हम मेरे से काफ़ी सीनियर भी हैं, उन्होंने एडवाइस की, देश में काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, उन सब ने हमें गाइड किया, समझाया। CBMC नेशनल कॉन्फ्रेंस 25 सितंबर 2021 को पहला हमारा सत्र था। आज दूसरा सत्र 2 अक्टूबर 2021 का दिन है और हम आप सबका अभिनंदन करते हैं। आज के इस सत्र में हम सीखेंगे कि सुसमाचार कैसे हम लोगों को बताएं, क्योंकि हम व्यवसाय में हैं, हम अपने काम में हैं, नौकरियों में हैं और हम मार्केट प्लेस में हैं। जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर हम परमेश्वर के सुसमाचार को, उसके राज्य के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम कैसे बताते हैं, कैसे बताना चाहिए। अधिकतर देखा गया है कि हम जब भी कुछ बातें करते हैं तो हम सुसमाचार के बारे में नहीं बताते। अधिकतर हम अपनी गवाही को शेयर करते हैं और जब हम गवाही को शेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हमने सुसमाचार का प्रचार किया, लेकिन वो सुसमाचार नहीं है। इसी तरीके से लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया, मुझे छुटकारा दिया, या मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत कार्य को किया और मेरे जीवन में चमत्कार को किया, मेरे परिवार में चमत्कार को किया। बहुत सारी बातों को हम बताते हैं। या फिर हम जब अपने व्यवसाय की बातें को करते हैं तो हमारे व्यवसाय में कैसे परमेश्वर ने लाभ को दिया और कैसे हमारा व्यवसाय फल फूल रहा है। लेकिन ये सब गवाही है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये सुसमाचार नहीं है। इसी तरीके से कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये कहना भी गलत है, क्योंकि ये सही नहीं है। और कुछ लोग ये सिर्फ साबित करते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये भी गलत है। अगर हम ये कहते हैं कि सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है और हम दूसरे ईश्वरों की निंदा करते हैं तो वो भी गलत हो जाता है। क्योंकि जब हम मार्केट प्लेस में हैं, हमें इस बात का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम कभी भी दूसरों के देवी देवताओं के बारे हम जिक्र ना करें, ना ही हम इसके बारे में हम बताएं। तो फिर सैल्वेशन क्या है हम उसको देखेंगे और सुसमाचार क्या है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म और सुसमाचार दोनों में अंतर है। धर्म जो है वो मनुष्य अपनी तरीके से जब परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता वो बनाता है या ढूंढता है, उसको हम धर्म कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि एक ऊंचाई में परमेश्वर है अपने स्वर्ग में, और मनुष्य इस धरती से एक सीढ़ी बना रहा है उस तक पहुंचने के लिए, और उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। वो उसकी खोज में है, वो उस सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो कई प्रिंसिपल को, कई सिद्धांत को वो फॉलो करता है, वो उसके पीछे चलने की कोशिश करता है। हो सकता है वो कुछ पोशाक ऐसे रंग का पहनता हो और वो अपना सिर का मुंडन करवाता हो, या फिर ज़मीन में लेट कर घिसट कर या कोई पहाड़ में चढ़ने की कोशिश करता है, या एक टांग में खड़े होकर पानी के अंदर डूबा रहता है। लेकिन ये सब कुछ जो है, ये सब धर्म की बात है। मसीही लोगों के बीच में भी अगर हम देखें तो वो भी सोचते हैं कि हम चर्च जा रहे हैं तो हम सुसमाचार को हम जो है वो अपना रहे हैं। वो एक नियमता हो सकता है, क्योंकि चर्च जाना है तो वो चर्च जा रहे हैं।
लेकिन क्या वो दिल से परमेश्वर से प्रेम करते हुए क्या उसके पास जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो कई लोग अलग अलग धार्मिक स्थानों में जाते हैं, वैसे ही चर्च में भी बहुत सारे लोग बैंडल में है, चेन्नई में है, गोवा में है, भिन्न भिन्न स्थानों में है। वहाँ पर भी लोग सोचते हैं कि हम कोई धार्मिक स्थल में जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे तो सुसमाचार हमको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सुसमाचार जो है धर्म से बिल्कुल परे है। सुसमाचार में हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ऊपर से इस जगत में नीचे उतर आया और मनुष्य के साथ वो मिला और मनुष्य के लिए उसने रास्ता तैयार किया, यीशु मसीह को दे दिया ताकि यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जीवन मिले। और यही सुसमाचार है और इसी सुसमाचार को हमें बताने की ज़रूरत है। और जब आप मार्केट प्लेस में रहते हैं तो कभी ये ना कहें कि यदि आप यीशु मसीह को नहीं मानते हैं तो आप नरक में चले जाएंगे। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। इस तरीके से यदि हम कहते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम उनके अंदर में एक डर और खौफ को पैदा करते हैं। ये डर और खौफ से हम सुसमाचार का प्रचार नहीं करते हैं। यीशु मसीह इस संसार में आए लेकिन किसी को दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन दोष से मुक्ति देने के लिए। तो हम किसी के ऊपर में हम क्यों दोष लगाएं? और हम ऐसा भी नहीं कह सकते और कहना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरे दुनिया में मसीहत जो है सबसे बड़ा धर्म है, सबसे ज़्यादा लोग इसके पीछे चलने वाले हैं, इसलिए आपको ये मानना है और आप इस धर्म को अपना लीजिए। नहीं, ये भी गलत है। और ना ही हम यीशु मसीह को अन्य देवी देवताओं के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और साथ ही हम पुराने उपनिषद्स या वेदास या पुराणास या श्लोकास इनमें से भी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन जो है ये हमें सुसमाचार की ओर नहीं ले जाता है। सुसमाचार जैसा मैंने आपको बताया कि वो है यीशु मसीह हम पर दोष नहीं लगाता और वो हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है और हमें अनंत जीवन यीशु मसीह में देता है, जिसको कि हमने अदन की वाटिका में खो दिया था। तो ये सुसमाचार हमें बताने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने कैसे स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर अपने आप को मनुष्य के रूप में शून्य करके वो इस संसार में आया ताकि हम और आप बचाए जाए। यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर में बलिदान हो गया, पूरे जगत का पाप को लेकर, मनुष्य के पाप को लेकर वो मारा गया और फिर तीसरे दिन उस मृत्यु में से वो जय पाया। यही है वो सुसमाचार। और अब यीशु मसीह कहते हैं कि आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। तो हमें इस बात को बताने की ज़रूरत है कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस संसार का ज्योति हूँ। इस बात को हमें बताने की ज़रूरत है कि वो सच्चा ज्योति है और वो हमें ज्योति देता है। वही हमारे मार्ग के लिए उजियाला है और वो हमें पथ बताता है कि हमें क्या करना है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सच्चा चरवाहा हूँ और एक सच्चा चरवाहा जो है वो अपने भेड़ों की रक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है, उसको हरी हरी चराइयों के पास, झरनों के पास लेकर जाता है, वो उसकी रक्षा करता है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही जीवित जल हूँ, मैं ही जीवित रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा पिएगा वो कभी मरेगा नहीं। तो ये इस बदन की मृत्यु के बारे नहीं कहता, लेकिन वो हमारी आत्मा की मृत्यु के बारे में बताता है। और हमें यही सुसमाचार है कि हमारा आत्मा जो है वो ना मरे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में फिर से पवित्र आत्मा के स्पर्श से नया जीवन प्राप्त करे। तो हमें इस सुसमाचार को बताने की ज़रूरत है। आप सबको जय मसीह की। Thank you. I thank God for this opportunity to be able to share the Lord's word with you. और इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों के बीच में बांट सकूं।
I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। I come expecting great things from the Lord, this morning. आज की सुबह मैं प्रभु से बहुत बड़ी चीज की उम्मीद करते हुए आया हूं। Each time we come together as believers, हर एक वक्त एक विश्वासी के रूप में जब हम इकट्ठे होते हैं, we should come with a great expectation. हमें बड़ी उम्मीद के साथ प्रभु के चरण में आना चाहिए। Because the word of God says, where 2 or 3 are gathered, there I am in their midst. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित हैं, उनके बीच में मैं हाजिर हूं। That means God is amongst us this morning. इसका मतलब इस सुबह के वक्त परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। And what does that mean? उसका मतलब क्या है? God does not waste his time. परमेश्वर अपने समय की बर्बादी नहीं करता। You and I know how to waste time. आप और हम जानते हैं समय को कैसे बर्बाद करना है। God never wastes his time. परमेश्वर अपने समय को बेकार में जाने नहीं देता। So if he is present, अगर वो हमारे बीच में मौजूद है, there is a reason for his presence. और उसकी उपस्थिति का एक कारण है। He is not just present to just see us do nothing. वो हमारे बीच में इसलिए मौजूद नहीं होता है कि हमारे साथ यूं ही रह के चले जाएं। He has come with a very large plan for us this morning. और इस सुबह के वक्त वो हमारे बीच में एक बहुत बड़ी योजना के साथ आया है। So I want us to first begin with that attitude of expecting great things from God. और इस सुबह के वक्त मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम प्रभु की उपस्थिति में बड़ी उम्मीद और चाहत के साथ आएं कि प्रभु मेरे लिए एक बहुत बड़ा कार्य रखा है। If you and I are just coming for a gathering and leaving as we came, then this meeting is a waste in the eyes of God. अगर हम इस सभा में यूं ही शामिल होने के लिए आए हैं बिना कोई मकसद के, तो फिर हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना बेकार है। God has a great plan for every one of us this morning. हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर इस सुबह के वक्त एक खास योजना रखा है। I want each of us to find that reason. और मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक जन उस योजना को अपने लिए जान लें। He has a plan and intention in each of our lives, each of our hearts this morning. हम में से हर एक के जीवन के लिए प्रभु एक योजना रखा है, उसकी एक खास इच्छा है। I pray that his plan will happen in every one of our lives this morning. और मेरी प्रार्थना यह है कि इस सुबह के वक्त उसकी जो योजना है हम में से हर एक के जीवन में पूरी होने पाए। I want us to begin with the message of Jesus as he began his ministry. और इस सुबह के वक्त मैं इस संदेश से इस कार्य को शुरू करना चाहता हूं कि यीशु मसीह। You can see that in Matthew chapter 4 verse 17. मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 17 वचन में हम देखते हैं, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। Repent, for the kingdom of heaven is at hand. मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट है। This is the message of Christ to us. आज प्रभु यीशु का संदेश हमारे लिए यही है। Even this morning, this is the message of Christ to us. और इस सुबह के वक्त मसीह का संदेश हमारे लिए यही है। But many of us once repented, बहुत सारे लोग मन फिराना चाहते हैं, but we have gone away from our repentance. पर
हम मन फिराव से कोसों दूर चले गए हैं। We are not living a life of repentance. हम लोग जो है मन फिराव के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। We believe that repentance is a one-time act of life. और हम ये सोचते हैं कि मन फिराना हमारे जीवन का एक समय का कार्य है। Then, we don't hear of repentance being a continuous journey. हम कभी भी मन फिराव को हमारे जीवन में एक लगातार होने वाली प्रक्रिया के रूप में नहीं देखते हैं। This is a very important aspect for every believer. हर एक विश्वासी के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। To live a life of repentance. मन फिराव का जीवन जीना बहुत जरूरी है। In the Word of God, there are more than 100 times the Bible says of repentance. ये जो मन फिराव है इसके बारे में बाइबल में 100 से भी ज्यादा बार बताया गया है। About repent or repentance or repentant. ये है कि मन फिराव या मन फिराना या मन फिराएं। There are 100 times the Word of God talks about this area of repentance. और ये जो मन फिराव की बात है 100 से भी अधिक बार इसके बारे में बताया गया है। Basically, it means a 180-degree turn. You turn, you're going that way, you turn back and go towards God. और इसका जो असली मतलब यह है कि हम पूरी तरह से मुड़ जाएं। हम जिस मार्ग की ओर जा रहे, दिशा की ओर जा रहे थे, बिल्कुल उससे पलट जाएं। The outcome is a complete change of direction. और इसका जो नतीजा है वो हमारा जो दिशा है पूरी तरह से बदल जाता है। The prodigal is a good example. इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उड़ाऊ पुत्र। He was going away from God. वो परमेश्वर से दूर जा रहा था। Then once he realized, he turned back towards God. जब उसने एहसास किया तो तुरंत वो प्रभु की तरफ मुड़ गया। A complete turning of direction. वो अपनी दिशा से पूरी तरह से मुड़ जाना। And a complete turning of the inner condition. और हमारा जो अंदरूनी दशा है उसका भी पूरी तरह से बदल जाना। When he left, we see him, give me my share of what is mine. और जब वो जा रहा था वो कह रहा था कि मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दे। He wants a life away from the Father. वो ऐसा जीवन चाहता था जो पिता से बिल्कुल दूर हो। On the way back, जब वो वापस आ रहा था he says, I'm not worthy. वो कहता है कि अब मैं योग्य नहीं हूं। While going, he says, give me mine. I'm worth what I want. This is me. जब वो पिता से दूर जा रहा था कह रहा था ये मेरा 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 हिस्सा मुझे दे दे। On the way back, he realizes, after all those experiences, I am unworthy. My Father is worthy. और जब वापस मुड़ रहा था अपने जीवन के उन सारे अनुभवों से इस बात को जान गया कि मैं तो अयोग्य हूं पर मेरा पिता है जो योग्य है। When that realization comes, जब इस तरह का एहसास हमारे अंदर आ जाता है then the Father says, तब वो पिता कहता है now that you know that you are unworthy, जबकि तुम अभी जानते हो कि तुम अयोग्य हो, now you are worthy. अब तुम असली में योग्य हो। You don't need to be a servant. तुम्हें एक सेवक के रूप में रहने की जरूरत नहीं। I am making you my son. मैं तुम्हें अपना बेटा बना रहा हूं। Not because of you, but because of me. तुम्हारे कारण नहीं, मेरे कारण। You get the robe, you get the ring, you get the sandals, you are restored. All that is lost is restored.
और तुम्हें जो है वस्त्र मिलेंगे, अंगूठी मिलेगी, जूते मिलेंगे और दोबारा पुनः निर्माण किए जाओगे। See, understanding this is an act of God. इस बात को हम अच्छी तरह से समझें, ये परमेश्वर का कार्य है। This turning back to God is the work of the Holy Spirit. परमेश्वर की तरफ मुड़ने का ये जो कार्य है वो There's a पवित्र good- आत्मा का कार्य है। There's a good word there. It says when he came to his senses. और वहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, जब वो अपने आपे में आया। How does he come to his senses? अपने आप में वो कैसे आया? Not by your wisdom, वो अपनी बुद्धि से नहीं, not by your ability. आपकी योग्यता के द्वारा नहीं, The Holy Spirit brings you to your senses. पवित्र आत्मा आपको वो एहसास दिलाता है कि आप अपने आप में आए। If you remember, the same thing happened with Nebuchadnezzar. और जब आपके जीवन में इस बात को देखते हैं तो आप इस बात को समझिए। In his pride, he is driven away and becomes like an animal. और वो उसके अंदर जो घमंड था वो पूरी तरह से हट गया, वो पूरी तरह से हलीम हो गया। Then one day, he came to his senses. और एक समय आया जब वो अपने आपे में आया। Then he says, God alone is God, all men are nothing. तब वो कहता है कि परमेश्वर ही एकमात्र जो परमेश्वर है, बाकी सब कुछ बेकार है। Then everything is restored to him. और दोबारा सब कुछ उसको दिया गया, प्राप्त हो गया उसको। Like that, the prodigal also, when he came to his senses, his life is restored. इसी तरह ये जो बुढ़ाऊ पुत्र अपने आप में आया, अपने होश में आया, तो दोबारा सब कुछ वो प्राप्त किया। See, there is a constant enmity of the spirit against the flesh. देखिए, आत्मा और शरीर इस दोनों के बीच में एक लगातार होने वाली युद्ध है। Let us look at it in Galatians chapter 5. उसको हम गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय में हम देखेंगे, verse 16 and 17. और उसके 16 और 17 वचन में हम देखते हैं। But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। Literal Greek is they are at war with each other. और यूनानी भाषा में लिखा है कि दोनों के बीच में जंग है, लड़ाई है। The Spirit does not work in the absence of any work of the flesh. It's acting in the midst of a battle of the flesh for our soul and for control over our lives. The Spirit is at war constantly against the flesh of the enemy. देखिए, आत्मा जो है शरीर की गैर मौजूदगी में नहीं है, बल्कि शरीर के रहते हुए उसके विरुद्ध में लगातार लड़ती रहती है। The flesh is constantly lusting after us, and the Spirit, with equal and more thirst of God, is wanting us because we have His image. We are His sons and daughters, and the Spirit is claiming us. देखिए, शरीर लगातार उन शारीरिक वस्तुओं की तरफ हमें खींचता है, और उसी समय में
जो आत्मा है वो हमें परमेश्वर की ओर खींचती है, कहते हुए कि तुम परमेश्वर के हो, उसके चुने हुए हो, उसके खरीदे हुए हो। In all of this, you see the parable, the prodigal, flesh is taking him away from the father's house. The spirit is bringing him back to the father's house. देखिए, उड़ाव पुत्र के उस कार्य में देखिए कि शरीर जो है उसको पिता से दूर लेके जा रही है, पर आत्मा उसको पिता की ओर लेके आ रही है। Same as Nebuchadnezzar, his pride takes him away from the blessings of God, favor of God, and then the Holy Spirit brings him back. देखिए, उसका अहंकार, उसका घमंड उसको पिता से दूर लेके जा रही है, उसके आशीषों से दूर लेके जा रही है, पर पवित्र आत्मा उसको वापस लेके आ रहा है। See, the work of the Holy Spirit is not visible. देखिए, पवित्र आत्मा का जो कार्य है, कई बार हम उसको प्रकट रूप में नहीं देख पाते। But that does not mean he is not at work. इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा कार्यशील नहीं है। The effects of his work is visible. देखिए, पवित्र आत्मा के कार्य का जो प्रभाव है वो दिखता है, उसको हम देख सकते हैं। His work is invisible, but the fruit of his work is visible. उसका कार्य अदृश्य है, पर उसका जो कार्य का फल है वो दृश्य है, उसको हम देख सकते हैं। See, we go through this every day. और हम इसमें से रोज हम होकर जाते हैं। I'll give you an example. एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। I'll give you an example from Job. अय्यूब के जीवन से मैं एक उदाहरण देता हूं। Let's look at chapter 33. अय्यूब उसका 33 अध्याय, Verse 15, 16, 17, 18. Can you read in Hindi, brother? अय्यूब उसका 33 अध्याय 15 से लेकर उसका 18 तक, इसको हम पढ़ेंगे। यहां इस तरह लिखा हुआ है, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। See, very simple explanation. एक साधारण जो है उदाहरण है और इसको बताते हैं। We decide something in our heart during the day. और हम अपने मन में कुछ बातों को सोचते हैं। It may be an employee. हो सकता है कि आप कई दफ्तर में काम कर रहे हैं। Or it may be a matter within the family. हो सकता है कि दफ्तर से संबंधित बात हो या परिवार से संबंधित बात हो, कुछ बातों को आप सोचते हैं। There has been some indiscipline or some matter, some problem. हो सकता है किसी तरह की कुछ समस्या है। And you gave time, you gave chance, and then one day you decide, I'm going to fire this worker. और आपने मौका दिया, आपने उसको समय दिया और बाद में आपने फैसला किया कि अब इसको हम आगे समय नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे, बाहर निकाल देंगे। Or if it's a family matter, you decide that you're going to take a very hard stand on this matter. या कोई पारिवारिक समस्या है तो आपने निर्णय लिया या फैसला किया कि एक सख्त कदम उठाएंगे। You go to sleep. आप सोने के लिए जाते हैं। You decide in the morning you're going to do this. आपने सोचा कि सुबह आप ये कदम उठाएंगे। You're going to be tough. You're going to do something very hard.
आप एक कठोर कदम उठाने वाले हैं, एक सख्त कार्य करने वाले हैं। Nobody talks to you about that. इससे संबंधित कोई भी बातें किसी ने आपसे नहीं की है, But then in the morning you wake up, पर आप सुबह उठते हैं, in the same matter, there is a tenderness. वही बात है, वही जो समस्या है, पर उसके प्रति आपके अंदर थोड़ी सी नरमी आ गई है। You are suddenly looking at that worker with compassion. आप अचानक उस कार्य करता है, उसको आप थोड़ी सी नरमी से देखते हैं। You know he's done wrong, आप जानते हैं कि उसने गलत किया है, but where there was anger and wanting to be tough, in that same place with nobody talking to you, there is a compassion. देखिए, जबकि आप उससे बहुत नाराज थे और कठोर कदम उठाने वाले थे, आपसे किसी ने बात नहीं की, पर अब आपके अंदर थोड़ी नरमी आ गई है। Where did that come from? वो कहां से आए? The word of God says that. और परमेश्वर का वचन कहता है, When we sleep, जब हम सोते हैं, God opens our ears परमेश्वर हमारे कानों को खोलता है and he puts instruction into our ear and seals it. और हमारे कानों में अपने निर्देश को डाल करके उसको जब बंद करता है, So he can turn our path tomorrow. तो कल के दिन हमारे मार्ग को पूरी तरह से बदल सकता है, So he can keep us from pride. ताकि हमें घमंड से अलग रख सके, So he can keep our foot from the pit. ताकि गड्ढे से हमारे कदमों को दूर रख सके, So he can keep his soul. ताकि हमारे प्राण की रक्षा कर सके। See, that is the work of God. ये परमेश्वर का कार्य है। Nobody taught us. किसी ने हमें सिखाया नहीं, Nobody physically came and spoke to us. और व्यक्तिगत तौर से कोई हमारे पास आके बातें नहीं की। The quiet work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बिल्कुल ऐसा कार्य जो शांत होकर किया है। The invisible work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अदृश्य कार्य। He does this many times with us. और कई बार हमारे जीवन में पवित्र आत्मा ऐसे कार्य करता है। Like one brother is talking. Hello, brother, can you close down your mic? Yeah, thank you. Thank you. Hello, brother, can you? And you can go ahead. You can go ahead. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. See, that is the work of God with us, all of us. देखिए, हम सबके जीवन में ये परमेश्वर का कार्य है। The fruit of the Holy Spirit, that's visible the next morning. और वो जो पवित्र आत्मा का फल है, जो प्रकट रूप में दिखता है, अगले दिन सुबह दिखाई देता है। See, the cost of not coming back, the reason for not coming back to God is pride. देखिए, परमेश्वर की तरफ नहीं आना या प्रभु की तरफ ना मुड़ना, उसका कारण है घमंड। From a very early age, children do that. We did that. When we do something wrong, we don't say sorry because it takes a lot to say sorry because my pride is involved. हम लोग बचपन से ये काम करते हैं। छोटे बच्चे से ये जो स्वभाव हमारे अंदर है, अहंकार या घमंड, जिसके कारण अगर गलती करते हैं तो हम क्षमा नहीं मांगते हैं, हम ये नहीं कहते कि क्षमा कीजिए। See, many rebels, many wandering, people who are still wandering, have not come back to their father because of pride. देखिए, बहुत सारे विरोधी या जो पिता से दूर हैं, जो भटक रहे हैं, वो इसलिए पिता के पास नहीं आते हैं, कारण है घमंड। Because even with the prodigal,
the people, the flesh would have said, don't go now, it will get better, make some money, become popular, become wealthy, then go back to your father. वो जो उड़ाऊ पुत्र है, शरीर उससे ये कह सकता था अभी पिता के पास मत जा, परिस्थिति बदल जाएगी, थोड़ा सा काम कर ले, पैसा कमा ले, एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जा, उसके बाद तू पिता के पास जा. Don't let them see you like this. अरे इस हालत में तू उनके सामने प्रकट नहीं होना. He had to cross that fleshly thought also. और उस उड़ाऊ पुत्र को इस तरह के शारीरिक विचारों का भी सामना करके पार निकलना था. See, it takes humility to say that I am in need of mercy of God. देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह मुझे चाहिए, इस बात को कहने के लिए हमारे अंदर वो नम्रता की जरूरत है. See, Jesus, the Son of God, the blameless one, the blemishless one, asked for baptism. देखिए, यीशु जो परमेश्वर का पुत्र, जो बिल्कुल निर्दोष और निष्कलंक है, उसने बपतिस्मा के लिए कहा कि मुझे बपतिस्मा दो. What is baptism? बपतिस्मा मतलब क्या है? It's a sign of repentance. वो जो है मन फिराव का एक चिन्ह है. If the blameless one can go down into the water and say, I need a new beginning, what about you and me? अगर वो निर्दोष और निष्कलंक व्यक्ति बपतिस्मा के द्वारा पानी के अंदर जा करके वो अपने आप को इतना लीन कर सकता है, तो आप और मुझको क्या करना चाहिए? He was obedient to the extent of being baptized. Think about that. देखिए, इस बात के विषय में आप सोचिए कि बपतिस्मा के उस जो कार्य है, वहां तक वो अपने आप को पिता के सामने आज्ञाकारी रहा. See, you and I need to lay aside pride. आपको और मुझको घमंड को एक किनारे कर देना है. We have to come in our brokenness, unworthiness, with all honesty to God and say, I have failed. हमें परमेश्वर की उपस्थिति में टूटे हृदय के साथ और हलीमी के साथ आना है कि मैं अयोग्य हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं. And when we come with that, God is able to cleanse us. अगर इस तरह इस हालत में हम प्रभु के चरणों में आएंगे तो प्रभु हमें जरूर शुद्ध करेगा. See, the word of God says in 1 John 1:9. 1 John 1:9, can we read, brother? पहला यूहन्ना उसका 1:9 में इस तरह लिखा हुआ है कि पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. Completely cleanses. पूरी तरह से हमें क्षमा करने के लिए, शुद्ध करने के लिए. It requires honesty. इसके लिए हमें ईमानदारी की जरूरत है. It also needs humility. इसके लिए हलीमी भी जरूरी है. If without humility and honesty, we will not receive forgiveness. नम्रता और ईमानदारी, इस दोनों के बदले, इस दोनों के बिना हम क्षमा नहीं पा सकते. See, the world is all over the world, churches, believers
are praying for revival. देखिए, पूरे विश्व भर में सभी कलीसियाओं में सभी विश्वासी लोग एक जागृति के लिए, बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। We are hoping for a big revival of the last days revival. उन लोग अंतिम दिनों की जागृति या बेदारी के लिए बहुत उम्मीद कर रहे हैं। Where will it come from? वो जो जागृति या बेदारी कहां से आएगी? It will come from repentant hearts. वो मन फिराव के हृदय से ही आएगी। Not just 20 years ago, 30 years ago, as a college student, I gave my life to Christ. But this morning, repentant about my thought life, my heart life, my word life. ये नहीं कि 20 साल या 25 साल पहले जब मैं विश्वविद्यालय में एक छात्र था, विद्यार्थी था, उस वक्त मैंने मन फिराया, पर अभी इस वक्त मेरे सोच, मेरी बातें और मेरे कार्य, इन बातों में मुझे मन फिराने की जरूरत है। It's a lifelong journey of living a repentant life, a continual repentance. देखिए, ये संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया है कि हम मन फिराव के जीवन हम व्यतीत करें। That's why he says his compassions are new every morning. इसलिए लिखा है, उसका अनुग्रह प्रतिदिन मेरे लिए नया है। Why? Because I'm in need of his compassion and mercy every morning. क्योंकि हर रोज सुबह मुझे उसके अनुग्रह और उसकी कृपा की जरूरत है। For as Romans says, what I want to do, I don't do. What I don't want to do, I end up doing. रोमियो में लिखा है कि पौलुस कहते हैं, जो मैं कार्य करना चाहता हूं उसको कर नहीं पाता हूं, पर जो नहीं करना चाहता हूं उसी को मैं करता हूं। Help me, God. प्रभु मेरी सहायता कर। If we live a life of continual repentance, अगर हम लगातार मन फिराव की हालत में जीवन बिताएंगे, then we can also help others in their need of repentance. और हम दूसरों की भी मदद कर सकेंगे उनके मन फिराव के क्षेत्र में। When we only repented once long ago, अगर हम बहुत साल पहले एक बार मन फिराए हैं, I lose the joy of my salvation because my salvation was years ago. मैं उद्धार का जो आनंद है उसको मैं खो दूंगा, क्योंकि मेरा उद्धार बहुत साल पहले हुआ है। It has to be a daily repentance and a daily joy of my salvation. और हमारे जीवन में प्रतिदिन मन फिराव का दिन होना चाहिए और प्रतिदिन उद्धार का आनंद हमारे जीवन में होना चाहिए। That's why David says, restore unto me the joy of my salvation, because it was far away. Bring back that joy this morning, Lord. इसलिए दाऊद परमेश्वर से कहता है, प्रभु मुझे फिर से उस आनंद से भर दे, क्योंकि वो आनंद बहुत दूर हो चुका था, पर अभी मुझे चाहिए। See, when we operate with our repentance and salvation long ago, today my fire dies down. My testimony is cold. The fervor for God is cold. I am losing what I had. I have gone away from my first love. There is no joy of salvation today. देखिए, हमारा जो पुराना जो मन फिराव है, उस आधार में ही हम जीवन बिताएंगे, तो दिन भर दिन अपने मसीह जीवन में हम कमजोर होते जाएंगे। प्रभु के लिए वो जो आग है, वो जो जोश है, वो जो लगन है, वो जो प्यार है, वो नहीं रहेगा। पहला प्यार हम खो बैठेंगे और धीरे धीरे हम बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। But on the outside, I am a child of God. पर बाहरी रूप में मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। I do the work of God. मैं परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं। I appear to be teaching, preaching. मैं प्रचार करता हूं, शिक्षा देता हूं। Out of a continuous practice.
ये लगातार करने वाली उस कार्य के कारण there is no joy. पर आनंद नहीं है. There is no experience of this morning. पर एक ताजा अनुभव इस सुबह के वक्त नहीं है. I'm giving you food from years ago. मैं जो है ऐसा भोजन दे रहा हूं जो बहुत पुराना है, बहुत साल पुराना है. But when I live a repentant life, when today I have gone to the throne and received the mercy of God, जब मैं मन फिराव का जीवन जीता हूं और आज मैं कलवरी क्रूज के पास जा करके उस अनुग्रह को प्राप्त किया है, then everything is genuine, everything is fresh. उसके बाद सब कुछ वो जो है ताजा है और वो बिल्कुल सही है. Then my ministry is also fresh. तब मेरी सेवा भी बिल्कुल ताजा है. Then I am like everybody else. I am also broken, and the one to the left and to the right, I can honestly say I struggle as you are. But I just received a little bit earlier mercy than you. Would you want mercy? I know from where I got mercy. तब हम अपने अगल बगल में जो रहते हैं, हम ईमानदारी से कह सकते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, संघर्ष करने वाला हूं, पर मैंने अभी उस अनुग्रह को पाया है. क्या तुम भी उसको पाना चाहते हो? हम उनके बीच में बांट सकेंगे. Then the unbeliever does not see judgment in my word or in my life. तब जो अविश्वासी है मेरे बातों में और मेरे कामों में वो न्याय नहीं कर सकता, दोष नहीं लगा सकता. The world is calling us judgmental. ये दुनिया हम पर दोष लगाती है. The younger generation is calling the older Christian generation as you judge too much. और ये जो आज की नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी से कहती है कि तुम बहुत न्याय करते हो. You know why? क्यों मालूम है? We don't live a repentant life today because we are still eating out of the years ago experience. क्योंकि आज इस वर्तमान समय में हम मन फिराव नहीं रहे हैं, हम अपने पुराने मन फिराव में जी रहे हैं, उन पुरानी रोटी को हम खा रहे हैं. See the outcome of this. देखिए इसका जो प्रतिक्रिया या इसका नतीजा क्या है? When we live in a life that continually seeks mercy of God, when we live in the knowledge and practice that I am called to live a penitent life, a repentant life, waiting for the mercy of God every day. जब हम इस परिस्थिति में, हम इस हालत में हम जीते हैं कि मुझे रोज मन फिराना है और प्रतिदिन प्रभु से उस अनुग्रह को प्राप्त करना है, then you and I are very generous also with mercy to others failures. आप और मैं, हम जो है दूसरों के प्रति दया दिखाने में भी हम जो है हम बहुत जो है उतावले होंगे और जेनरस होंगे. We don't talk about others failures. हम दूसरों की असफलता के बारे में बात नहीं करेंगे. The father never talked about the sins of the son. पिता अपने बेटे के गलती के बारे में कभी बातें नहीं की. In fact, all the words that the son practiced on the way, father did not let him. He hugged him so he could not even talk. He only said the first sentence. और इतने सालों से वो किस तरह का जीवन जिया, उन बातों पर एक भी शब्द नहीं कहा, पर जैसे देखा उसको गले लगा लिया और एक ही बात कही. But the elder brother, पर जो बड़ा बेटा है, talked about everything and more of what the younger brother did. छोटे भाई ने जो भी किया है उसके बारे में उससे बढ़कर उसने कह दिया. Our words, our mind, our
our lips should not talk about others' failures. देखिए, हमारे मन, हमारे जीभ और जुबान दूसरों की गलतियों के बारे में बात नहीं करनी है। If your lip has to talk, if your mind has to be consumed about sin, failure, let it be consumed about our sin and our failure. अगर हमारे दिमाग में किसी की गलती के बारे में सोचना है और हमारी जुबान किसी की गलती के बारे में बोलना है, वो सिर्फ और सिर्फ हम खुद, मैं खुद हूं और खुद के बारे में बोले और किसी के बारे में नहीं। The more we are consumed about, oh unto me, like I said, did that. Oh unto me, I am a man of unclean lips. Standing before God, oh unto me, I'm from a people of. The more we are consumed about our failure, the less we are concerned about my brother's failures. जितना अधिक हम अपने खुद की असफलता पर हम ध्यान देते हैं, तो हम उतना अधिक दूसरों की कमजोरी पर ध्यान नहीं देंगे। हम परमेश्वर की हुजूरी में उसके अनुग्रह के सामने आके खड़े होंगे और कहेंगे, हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूं। See, the minute one of us lives in a continual repentance, देखिए, हम में से एक व्यक्ति जो लगातार उस मन फिराव के हालत में जीता है, the Holy Spirit will spark that in a person nearby. पवित्र आत्मा उस चीज को उसके बगल वाले के जीवन में भी वो जो लगाता है। Even this morning, I believe the Holy Spirit is sparking a repentant, a penitent life, a desire for a repentant life in amongst us this morning. और मैं आशा करता हूं कि सुबह के वक्त भी पवित्र आत्मा हम में से हर एक के अंदर इस बात को जो है एहसास कराता है कि हमें मन फिराव का जीवन जीना है। See, begins with one. देखिए, एक व्यक्ति से शुरू होता है, goes to one more, another person. ये उस एक व्यक्ति से अपने बगल के दूसरे व्यक्ति पर जाता है, Spreads. और इसी तरह आगे एक एक के जीवन में, Very soon, और बहुत जल्दी a group of people living a repentant life. हम देखेंगे कि लोगों का एक समूह मन फिराव का जीवन जिएंगे। Then 2 Chronicles 7:14 applies. उसके बाद दूसरा इतिहास 7:14, Please read that, brother. और वहां लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन, वहां पे इस तरह लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। See, we want the healing of the land. हम देश की चंगाई चाहते हैं, But where does it begin? पर वो कब शुरू होगा? If that's not the beginning, that's the end. देखिए, वो शुरुआत नहीं है, वो अंत है। The beginning is not in a group. देखिए, शुरुआत एक समूह में नहीं है, In a big gathering of people. लोगों के एक बहुत बड़े झुंड में नहीं है। It begins with one repentant life. वो एक मन फिराव के जीवन से शुरू होता है। This morning, the Holy Spirit is looking for one repentant life in your town, in your family, in your state. देखिए, इस सुबह के वक्त परमेश्वर आपके घर में, आपके शहर में, आपके जिले में, आपके राज्य में
ये मन फिराव के हृदय को वो देखना चाहता है। It's there. If my people humble themselves, humility, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, repentance. What is turning back? If not ये क्या repentance, लिखा है? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर माने नम्र होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन अब बुरी चाल से फिरें, इसका मतलब मन फिराव है। see the season that we are living in. देखिए समय जिसमें हम जी रहे हैं, So much need for healing. चंगाई की बहुत बड़ी जरूरत है, So much need for forgiveness. क्षमा करने की बहुत जरूरत है। World in need of forgiveness. देखिए इस दुनिया में इस चीज की इस वक्त बहुत जरूरी है। It will not happen ये नहीं होगा unless you and I, children of God, are beginning to live a repentant life, seeking the mercy of God every day, grieving over the sins and the failures in our own life. जब तक आप और मैं, हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हर रोज मन फिराव का जीवन जीते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में आके उसके अनुग्रह को मांगते हैं। Then when we have cried for our own soul, for our own failures, God will bring others to our mind to cry for their others' sins and their failures. जब हम खुद अपनी गलती के लिए एहसास करते हैं, टूटे हृदय के साथ हम प्रभु के चरणों में हम रोते हैं, बिलखते हैं, क्षमा मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं, तो दूसरे लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। May God work in us in a very powerful way this day. आज के दिन परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य रूप से हमारे जीवन में कार्य करे। Our conference this morning is almost over. इस सुबह का हमारा जो कॉन्फ्रेंस है अभी करीबन समाप्त हो रहा है। You are now going to break into groups अभी हम अलग-अलग झुंड में जाएंगे to spend some time in prayer. ताकि हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएं। You may ask, how does this affect me? I am a business or professional. आप पूछ सकते हैं ये मेरे जीवन में कैसे कार्य करेगा? मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं एक काम कर रहा हूं। Job, when God talks about Job, Job is shown as a trophy of God. See, my son who turns away from evil. देखिए अय्यूब, जब अय्यूब के बारे में लिखा है वो हमारे लिए एक मिसाल के रूप में दिखाया है। देखो अय्यूब किस तरह मन फिराया है। That's how God introduces Job. और इसी तरह अय्यूब के बारे में प्रभु हमें बताता है। God introduces Job like that in chapter 1 verse 8. इसी तरह अय्यूब पहला अध्याय के 8वें वचन में प्रभु अय्यूब के बारे में हमें परिचय देता है। No, brother, can you read that please? या अय्यूब 1:8, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। Turning away from evil. बुराई से दूर रहने वाला। Not turned away from evil. ये नहीं कि बुराई से दूर हो गया है। Not once turned away from evil. ये नहीं कि कभी माने पहले कभी बुराई से दूर हुआ था। No, no. Every minute, every hour, every day turning away from evil. हर रोज हर एक वक्त हर क्षण उस बुराई से दूर रहने वाला। May God delight in us also, like he delighted with Job. Job was God's trophy. He was God's trophy. He was showing, look at my son. He was showcasing him. देखिए जिस तरह
अय्यूब को प्रभु ने वो इनाम दिया, हमें भी दे और हम भी रोज वो बुराई से दूर रहने का जीवन बिताएं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father God, हे पिता, help us to realize that we are nothing. प्रभु जी अपने आप का एहसास करने में सहायता कर। If not for your son Jesus, we would be lost and in darkness. प्रभु जी अगर तेरा पुत्र यीशु नहीं होता तो हम अंधकार में खो गए होते। Lord, would you renew and restore us this morning again? प्रभु इस सुबह के वक्त हमें नया बना और फिर अपना बना। Give us a repentant hearts. हमें मन फिराव का, पश्चाताप का हृदय दे। Grant us wisdom for these days. प्रभु जी आज के दिन के लिए हमें वो बुद्धि और ज्ञान दे। Do a great work amongst us this morning, Lord. इस सुबह के वक्त हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य कर। I pray that the one here this morning that is seeking you will find you. प्रभु जी आज सुबह के वक्त जो तुझे खोज रहा है तुझे पाए, यही हमारी प्रार्थना है। I pray that the one that is crying for the restoring of the joy of salvation will find it this morning, having प्रभु received. मैं प्रार्थना करता हूं कि सुबह के वक्त जो दोबारा उस उद्धार के आनंद को प्राप्त करना चाहता है, उसकी खोज कर रहा है, वो उसे प्राप्त करें। Light a fire in their family, light a fire in their city, in the state and in the nation. प्रभु जी उनके परिवार में, उनके शहर में, उनके जिले में, उनके राज्य में, उनके देश में तू इस आग को लगा प्रभु। May a revival come amongst us, Lord. प्रभु हमारे अंदर ये जागृति, बेदारी आए। Holy Spirit, continue to disturb us, continue to comfort us. प्रभु पवित्र आत्मा लगातार तू हमें बना और हमें सांत्वना दे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।